جو آمینہ کے لال کا غلام ہوگا وہ ماں کو باہر نہیں بلکہ ماں کے قدموں کو چومے گا، اور جب ماں کے قدم کو چومے گا اللہ تیرے مقدر میں جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ بہاوا جیسے بھا اماں کہا ہے بھیا، اماں اب تو چلی جاؤ، کھیتوں میں بنا لو، مڑی سڑی رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک چیز یاد رکھنا، میں والدین بیان کرنے کا مقصود نہیں میرا، ایک چیز یاد رکھنا، اگر تو اپنے ماں کو آج دھکے مار کر کے باہر کیا ہے نا تو کل تیرا بیٹا بھی تجھے دھکے مار کر کے باہر یاد رہے۔ ابھی مجھ سے پیشتر شہنشاہ ترنم شاعر ہندوستان جناب قاری صابر رضا کلیان پوری کی نعت پاک آپ لوگوں نے سماعت بہت جلد 10 تاریخ کو ہم لوگ سیتا پور میں تھے پروگرام میں، بڑا اچھا کامیاب پروگرام رہا اللہ۔ نقیب اعظم ہندوستان قاری رفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، اور سیتا پور کی تاریخ پھر ہوئی ہے، اور کرم فرما استاذ القرآ ماہر تجوید و قرات شہنشاہ ترنم صدر جلسہ حضرت قاری ذاکر علی صاحب قبلہ جو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، واقعی میں 7-8 سال کے بعد اٹیا تھوک میں ہماری ان کی ملاقات ہوئی تھی، تب سے ان کی ملاقات ہماری نہیں ہوئی تھی، اللہ کو منظور تھا، ہماری ملاقات ہو گئی۔ استاذ العلماء علامہ جمیل احمد قادری صاحب کا پاکیزہ بیان آپ لوگوں نے سماعت کیا، قرب و جوار کے علماء اکرام کی تقاریر نعت پاک آپ لوگوں نے سنی ہے۔ بس آخری نمبر ہمار ہے، یہ کے بعد درود و سلام ہے۔ اب بولو نا یار، آپ بھی بولو کرو، آخری نمبر ہمار، یہ کے بعد درود و سلام، اور قبر میں سنیوں کو آرام۔ بولا کرو، آپ بھی بولا کرو، قبر میں سنیوں کو آرام۔ تو بھیا یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محفل سستی ہے، اللہ کا ذکر پاک ہوتا ہے، اس جگہ پر میرے سرکار تشریف لاتے ہیں، لاتے ہیں نا؟ حق ہے۔ تھوڑا ساؤنڈ کے بعد بڑھائیے میرے بھائی، مجھے ابھی 8 دن بولنا ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں نا میرے بھائی، تو کہا تو دوئی مصرع ہمہو پڑھ دی۔ بھائی نعت شریف پڑھنے کے ہم علامہ جمیل صاحب تو نہیں ہو سکتے، وہ ہماری استاذوں کی برابر ہیں، لیکن ان کا میں شاگرد کی حیثیت سے میں نعت شریف تو پڑھنا نہیں جانتا، لیکن آقا کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے دل۔ ہمیں قطار کے مسلمانوں جو مصطفیٰ کا وفادار ہوگا، جو آمینہ کے لال کا وفادار ہوگا، پوری رات سلام پڑھتے رہو، پوری رات نعت و منقبت سماعت کرتے رہو۔ اگر تو نے زبان سے نعت پڑھی ہے، نبی کی بارگاہ میں تیری نعت قبول نہ ہوگی، آمینہ کے لال کی بارگاہ میں تیری تقاریر قبول نہ ہوگی، کیونکہ آمینہ کے لال کی بارگاہ میں زبان نہیں بلکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، آمینہ کے لال کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ آؤ قربان جاؤ مسلمانوں، بات آئی ہے تو میں ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کروں۔ اللہ اکبر، آمینہ کے لال کون ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یہ وہی نبی ہے۔ اگر مکہ المکرمہ میں مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں، اجالا پورے جہان میں ہو رہا ہے۔ آمینہ کے لال کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے ہم محبت کرتے ہیں۔ علامہ جمیل صاحب نے بتا دیا کہ جس طرح سے تمام نبیوں میں اعلیٰ میرا مصطفیٰ ہے، اسی طرح سے تمام ولیوں میں بے مثال غوث اعظم ہے۔ آؤ قربان جاؤ غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، عبد القادر سے پیار کرنے والوں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیا زبان نہیں دیکھی جاتی ہے، آمینہ کے لال کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ دل جو مصطفیٰ کو دل سے پکارتا ہے، جو آمینہ کے لال کو دل سے پکارتا ہے، میرا نبی میرا آقا مدینے سے مدد فرماتا ہے، آمینہ کے لال مدینے سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، یہی مدینہ کی گلی ہے۔ اللہ جو ہے
अल्लामा जमील साहब मदीना शरीफ गए हैं, इनसे पूछो, इंशाअल्लाह इरादा मैं भी किया हूँ उम्रा का। आपसे दुआ की दरखास्त है कि भी मैं अपने मुस्तफा का, अपने आका का रौजा देखो, ताकि जमाने में बता दो कि यार जिस तरह मेरे नबी का रौजा है, जिस तरह आमीना के लाल की गली है, जिस तरह गुंबदे खसरा है, इस तरह हसीने जमील जन्नत में जगह नहीं है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान चाहो मुसलमानों, अपने नबी से मोहब्बत करने वालों, आमीना के लाल से प्यार करने वालों, अल्लाह अकबर कुर्बान चाहिए। यही मदीना की गली है। अल्लाह अकबर, एक ज़ईफ़ा औरत है जो मदीना की गली में घूम रही है, जिसकी आँख की बीनाई सलब हो चुकी है। उसके गुर्बत का आलम यह है, कारी जमील साहब क़िबला दुआओं का तलबगार ज़हूर अहमद खान है। अल्लाह अल्लाह, मदीनतुल मुनव्वरा की गली में ज़ईफ़ा खातून घूम रही है, जिनकी गुर्बत का आलम यह है, आँख की बीनाई सलब हो चुकी है, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, जिस्म पर लिबास फटे हुए है, हाथ में कटोरा है। मदीना की गली में ज़ईफ़ा औरत घूम रही है। अल्लाह अकबर जो है, आका अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में वो ज़ईफ़ा खातून जा रही है, आँख की बीनाई सलब हो चुकी है। मदीना की गली में ज़ईफ़ा को ठक्कर लगती है और ज़ईफ़ा का कटोरा ज़मीन पर गिर जाता है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, गिरने के बाद वो ज़ईफ़ा खातून अपने आका की बारगाह में पहुंची है। अल्लाह अकबर, ज़ईफ़ा औरत क्या देख रही है कि सारे लोग अपने आका को दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। कोई कारी साबिर की तरह पढ़ रहा है, कोई अल्लामा जमील की तरह पढ़ रहा है, कोई कारी ज़ाकिर साहब की तरह पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब सुनहरी आवाज को सुन रही है ज़ईफ़ा, इंटरनेशनल आवाज को ज़ईफ़ा सुन रही है, अल्लाह अकबर, सारे लोग दुरूद व सलाम आका की बारगाह में पेश कर रहे हैं, मुस्तफा की बारगाह में पेश कर रहे हैं। ज़ईफ़ा खातून की आवाज नहीं है कि आका की बारगाह में बेहतरीन आवाज से मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया जाए, आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए। अल्लाह अल्लाह कुर्बान चाहिए। इतना सुनने के बाद ज़ईफ़ा खातून अपने आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में उसी का दुरूद व सलाम कबूल किया जाता होगा जो अच्छी आवाज का मालिक होगा, जो इंटरनेशनल नाते पढ़ता होगा, जो बेहतरीन आवाज का मालिक होगा। अल्लाह अकबर, ज़ईफ़ा आका की बारगाह में रो रही है, या रसूल अल्लाह, हमारे पास आवाज नहीं है, हमारे पास नाते पढ़ने की आवाज नहीं है, हमारे पास सलीका नहीं है, हमारे पास ढंग नहीं है, पता नहीं हमारा दुरूद व सलाम कबूल किया जाता है कि नहीं। अल्लाह अकबर, इतना सुनने के बाद में कब्र अनवर से आवाज आती है, ए ज़ईफ़ा कान खोल करके सुन ले, ये जितने दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, तेरी ज़बान के सदके में इनके दुरूदों को सलाम को कबूल किया जा रहा है, क्योंकि ये ज़बान से पढ़ रहे हैं और तू मेरी बारगाह में दिल से पढ़ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, हज़रत अल्लामा ज़हूर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है तो हाथ उठा के बोल दो या गौ, और जोर से बोलो या गौ। अल्लाह अल्लाह। और मुसलमानों कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर। आज हमारा माशरा इतना बिगड़ता चला जा रहा है, मुसलमान यही कहता है कि मुर्गा काटो गौस के नाम पर जन्नती हो जाओगे। ऐसे जन्नत में जाने वाले हो, हमें पूरी जिंदगी जिना करता रहे, पूरी जिंदगी नमाज न पढ़े, पूरी जिंदगी गुनाहों के सागर में डुबकियां लगा रहा है मुसलमान, और अपने आप को कह रहा है कि हम जन्नत में जाएंगे। ये मुसलमानों, ऐसे इतनी आसान नहीं कि तुम्हें जन्नत मिल जाए। अल्लाह अकबर। आओ कुर्बान जाओ मुसलमानों। आज तुम गौसे पाक की महफिल में बैठे हो, अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में बैठे हो, यहाँ से पैगाम लेकर के जाना कि हम अब्दुल कादिर वाले हैं, हम फातिमा के लाल वाले हैं, हम आमीना के लाल वाले हैं, हम हसन और हुसैन वाले
है। अच्छा ये बताइएगा अब्दुल कादिर नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? जरा हाथ उठा करके बताइए। मेरा गौस नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? हाथ उठा के बता दो यार। मेरे गौस नमाज पढ़ते थे ना। और गौस का गुलाम और गौस का मुरीद सिर्फ मुर्गा काटने में लगा है। गौस का गुलाम मुर्गा काट रहा है, जन्नती हो रहा है। गौस का गुलाम मुर्गा काट रहा है, ज़बा कर रहा है, जन्नती हो रहा है। अब्दुल कादिर नमाज पढ़ के खुदा को राजी कर रहा है। अब्दुल कादिर नमाज पढ़ के अपने रब को राजी कर रहे हैं। और इसका मकाम, इसका मिसाल ये जो है, इसका मामला ये हो चुका है। हम मुर्गा से एतराज नहीं करते हैं। बिल्कुल फातिहा करो, खूब मिलाद करो, खूब जलसा करो, खूब जुलूस करो, लेकिन पहले नमाज आपको पढ़नी होगी। पहले आपको जो है नमाज पढ़नी होगी। मुसलमानों यही चीज मैं कह देता हूँ, अल्लाह अकबर। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हो, तेरी सारी इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। तेरी सारी इबादतें तेरे मुंह पर मार दी जाएगी। तेरे जलसा का मुहताज मेरा गौस नहीं है। तेरी चादर का मुहताज अब्दुल कादिर नहीं है। तेरे पैसे का मुहताज मेरा गौस नहीं है। अगर अब्दुल कादिर को राजी करना है तो मस्जिद का नमाजी हो जा। अब्दुल कादिर को राजी करना है, मैदान का गाजी हो जा। कसम खुदा की, जब तुम मस्जिद का नमाजी होगा तेरा गौस राजी होगा, मदीने का मुस्तफा राजी होगा, तेरा खुदा राजी होगा। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि गौसे पाक पर कितने लोग जान दे सकते हो? जरा हाथ उठा करके बताओ, कितने लोग जान दे सकते हो? कितने लोग इमाम हुसैन के नाम पर हाथ उठाए रहो, जान दे सकते हो? आप लोग जान दे सकते हैं हुसैन के नाम पर, गौस के नाम पर जान दे सकते हो? हम आपसे जान नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे माल नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। 5 लोग खड़े हो जाओ कि गौस के नाम पर कल से हम नमाज शुरू कर देंगे। कितने लोग जान हम आपसे जान नहीं मांग रहे हैं? हम कितने झूठे हो गए हैं। मुसलमान कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अबे पकड़ा ही नहीं है और बोलता है छोड़ेंगे भी नहीं है। जिसके हाथ में गौस का दामन होगा वो नमाज तर्क नहीं करेगा। जिसके हाथ में अब्दुल कादिर का दामन होगा वो कभी शराब नहीं पिएगा। जिसके हाथ में गौसे आजम का दामन होगा वो कभी जिना नहीं करेगा। जिसके हाथ में अब्दुल कादिर का दामन होगा वो कभी सूदो ब्याज के हुक्म अपने हुल्कोम में नहीं उतारेगा। अभी आपने वादा किया है कि गौसे आजम के नाम पर हम जान दे सकते हैं। अरे भैया जान बाद में देना, पहले नमाजी हो जाओ यार, पहले नमाजी हो जाओ, खड़े हो जाओ अब्दुल कादिर के नाम पर और बता दो मौलाना ज़हूर खान, आज के बाद हमारा सर किसी के बाप के सामने नहीं, हमारा सर परवरदिगार की बारगाह में झुकेगा। कितने लोग, 5 लोग से मैं सवाल कर रहा हूँ, 5 लोग सिर्फ नमाज की पाबंदी कर लो। कसम खुदा की, जब 5 नमाजी हो जाएंगे, 5 के सस्ते में, अगर तुम मस्जिद से अपने घर से मैदान में निकलेगा, इरादे नमाज करके निकलेगा, तेरे मोहल्ले का नौजवान देखेगा और बोल पड़ेगा देखो अल्हम्दुलिल्लाह फला भैया नमाजी हो गया है, चलो हम भी नमाज पढ़ते हैं, चलो हम भी अपने रब को राजी करते हैं, चलो हम भी अपने खुदा को राजी करते हैं। मुसलमानों, कब्र में इतनी पिटाई होगी कि तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं बचा सकता है। कब्र में इतनी धुलाई होगी कि तुम्हारा पीर तुम्हें नहीं बचा सकता है। जो पीर के बल पर तुम छोड़ दिए हो कि हमारा पीर हमको बचा लेगा, अरे वहां कोई किसी को बचाने नहीं आएगा। अगर कोई बचाएगा तो मुस्तफा की मोहब्बत बचाएगी, अगर कोई बचाएगा तो नमाज की मोहब्बत बचाएगी, अगर कोई बचाएगा तो तरीक़े गौसे आज़म बचाएगा। मुसलमानों, कसम खुदा की मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 5 लोग सिर्फ, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा आप खड़े होकर के बता दो, ज्यादा नहीं 5 लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप अगर गौसे पाक से मोहब्बत करते हो, तेरा मुर्गा तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा, तेरी इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह अकबर। जो है आज तो नया नया स्टाइल हो गया है कि हमारे बुढ़ऊ चच्चा भी है, कब्र में जो है पैर लटकाए हुए है, ना मुंह में दांत है, ना पेट में आंत है, वो भी दाढ़ी छिला करके घूम रहा है, वो भी अपने आप को इंटरनेशनल हीरो बन रहे हैं। ये मुसलमानों, अगर हीरो देखना है, इस्लाम का मुकद्दस हीरो देखना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तुझे सिखाता हो, बहराइच के राजा को देख ले, अजमेर के खाजा को देख ले, बरेली के राजा को देख ले, बरेली के ताजुश शरिया को देख ले। अगर तू अब्दुल कादिर वाला है तो जमाना
جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والے بزرگوں، اس طرح سے جلسہ آپ کا، لوگ کہتے ہیں مولانا بھیا آئے رہے بڑا بڑھیا تقریر کریں، ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا۔ ابھی یار تمہارا جلسہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک تیری محفل سے کوئی نمازی نہ ہو جائے، جب تک تیری محفل سے کوئی نیک بندہ نہ ہو جائے، جب تک تیری محفل سے جو ہے کوئی توبہ کر کے نہ اٹھے۔ آج تم کہہ رہے ہو ہم عبد القادر کے ماننے والے ہیں، ہم بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، آؤ ہمارے نوجوانوں کا معاشرہ دیکھو۔ ابھی انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نماز ضرور پڑھیں گے۔ مسلمانوں نماز کی پابندی کرو یار، 10 منٹ کی بات ہے، 5 منٹ کی بات ہے، اگر 10 منٹ تو اپنے رب کو راضی کر لے گا نا تو جنت تیرے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اگر 10 منٹ اپنے خدا کو راضی کر لے گا، آج ہمارے معاشرہ میں ہے، ہمارا نوجوان بھائی ہے، آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑتا چلا جا رہا ہے، آج ہمارا نوجوان بھائی گناہوں کے ساگر میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، اپنے آپ کو انٹرنیشنل ہیرو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بے مثال سمجھتا ہے، اپنے آپ کو لاجواب سمجھتا ہے۔ اے نوجوانوں، یہ جوانی اللہ نے تجھے دی ہے تو پکچر دیکھنے کے لیے نہیں دی ہے، اگر اللہ نے تجھے جوانی دی ہے تو اپنی عبادت کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ نے تجھے جوانی بخشی ہے اپنی عبادت و ریاضت کرنے کے لیے دی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرہ میں اتنی برائیاں رائج ہو چکی ہے، قاری صابر صاحب توجہ کا طلبگار ہو، اتنی برائیاں رائج ہو چکی ہے کہ یہ نوجوان ہے، قطار کا مسلمان ہے، اکبر پور کا مسلمان ہے، یہ جب ممبئی کی سرزمین پر پہنچتا ہے یہاں جو چنہی مانگ کے تمباکو مانگ کے کھاتا پیتا ہے، لیکن جب یہ پیسہ پاتا ہے ممبئی کی سرزمین پر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر یا کوئی ہوٹل دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد جو ہے اب اس کو چاہے گلاس دھوئے پر ہے، وہاں گلاس دھلے گا، برتن پلیٹ دھلے گا، اور دھلنے کے بعد جیسے 2-3 مہینہ گزری، ایک بازار ہے جس کو زمانہ چور بازار کہتا ہے، یہ نوجوان وہاں پہنچے گا اور کہے گا بھیا ہم کا ایک بڑی والی موبائلیاں دے دو تاکہ ہم اپنے گاؤں میں جائیں اور پتہ چلے کہ فلانے کا لڑکا بہت کمانے والا ہے، فلانے کا لڑکا بڑا پیسہ کما رہا ہے، فلانے کا صاحبزادہ بڑا پیسہ کما رہا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آج تیری جوانی ہے گناہ کرنے کے لیے، آج تو تباہ و برباد ہو رہا ہے، جگہ جگہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ ہمارے سینے پر آتنکواد کی مہر لگائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ مسلمانوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے اپنے دل سے طریقے مصطفیٰ کو نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ مسلمان پہنچتا ہے اور نوجوان پہنچتا ہے ممبئی کی سرزمین پر، چور بازار پہنچتا، ایک موبائل خریدتا ہے، اماں بھوکھی مر رہی ہے، باپ بیمار پڑا ہے، بہن کی شادی جو ہونے والی ہے، لیکن اس کو بڑی والی موبائل ضرور چاہیے۔ اب یہ وہاں سے چلا ہے، چلنے کے بعد میں مثال دے رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارے گاؤں کی بات کر رہے ہیں، قطار میں مثال دے رہا ہوں، اکبر پور ہو یا قطار کا مسلمان ہو، جب اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد جیسے عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے، اس کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ عشاء کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ مغرب کی جماعت کتنے بجے ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ مسلمان ہوتا تو اس کو پتا ہوتا، اگر یہ محمد کا غلام ہوتا تو اس کو پتا ہوتا، اگر یہ حسین کا غلام ہوتا تو ان کو معلوم ہوتا کہ مغرب کی اذان اتنے بجے ہوتی ہے، عشاء کی جماعت اتنے بجے ہوتی ہے، فجر کی جماعت اتنے بجے ہوتی ہے، لیکن فہر ہمارا سنی مسلمان مرغا ذبح کرو جنتی ہو جاؤ، فہر ہمارا سنی مسلمان مرغا کرو فاتحہ کرو جنتی ہو جاؤ، نماز ایک بھی نہ پڑھو جنتی ہو جاؤ۔ لیکن آج ہمارے جو ہے معاشرہ میں اتنی برائیاں رائج ہو چکی ہے جو آج غیر ہم پر حملہ کر رہے ہیں، آج ہماری بہن بیٹیوں کا یہ طور و طریقہ اور مزاج بن چکا ہے، یہ بھی مزارات اولیاء پہ جاتی ہے اور وہاں طرح طرح کی گندگیاں پھیلاتی ہے اور یہ کہتی ہے ہمیں بھلا بابا
बाबा ने बुलाया है, हमें फला बाबा ने बुलाया है, हमें तुझे किसी ने नहीं बुलाया है। अगर तुझे किसी ने बुलाया है तो शैतान बुला रहा है, अगर तुझे किसी ने बुलाया है तो जहन्नम का रास्ता बुला रहा है। कसम खुदा की मेरी माँ और बहनों, यहाँ से तौबा करके जाना कि हम कनीसे फातिमा है, फलस्तीन की जो है औरतों ने बता दिया, अपने लाल को उन्होंने भी दूध पिलाया है। लेकिन आज हमारी माँ और बहनें अपने लाल को जब दूध पिलाती है तो उसको भोजपुरी गाना सुनाती है, अपने बेटा को दूध पिलाती है, सलमान खान की पिक्चर दिखाती है, अपने बेटा को दूध पिलाती है, फलाना नसनिया की पिक्चर दिखाती है, अपने बेटा को दूध पिलाती है, फलाने तबाइश की पिक्चर और फिल्म दिखाती है। ए मेरी माँ और बहनों, अगर तूने अपने लाल को दूध पिलाया है फिल्म और पिक्चर दिखा करके, वही बेटा जब जवान होगा, वही बेटा जब बुलूगत के मकाम पर पहुंचेगा, वही बेटा तुझे धक्के मार करके बाहर करेगा। अगर तू अपने बेटा को दूध पिलाते समय खुदा का नाम ले लिया होता, मुस्तफा का नाम ले लिया होता, तो तेरा बेटा हुसैन नहीं लेकिन कतार का मुसलमान गुलामे हुसैन बन जाता, बन जाता, गुलामे सिद्दीक़ अकबर बन जाता। लेकिन वाहरे हमारा माशरा, अल्लाह अकबर। अब ये नौजवान पहुंचा है, पहुंचने के बाद मोबाइल लेकर के कतार के बस्ती में पहुंचा है, रात की तारीकी है, नमाज इशा खत्म हो चुकी है, पूरा मोहल्ला सो चुका है। अल्लाह अकबर। आज हमारे नौजवानों का मामला जो बन चुका है, ये नौजवानों अल्लाह से डरो और रसूल पाक से मोहब्बत करो। कब्र का बहुत भयानक मंजर होगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं कि तुम कब्र की रात को बर्दाश्त कर सको। ईमानदारी से बताइएगा, गर्मी मई जून के महीना में अगर 1 मिनट की लाइट कट जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, हम कितने हैरान और परेशान हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। कोई जो कह रहा है पावर हाउस पर जो है अल्लामा जमील साहब से कहलवाया जा रहा है, हुजूर पावर हाउस पर जरा फोन लगा करके जानकारी कर लीजिए, लाइट कब आएगी। हमारे बच्चे जो है गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बीवी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हम कितना परेशान हो जाते हैं, हम कितना हैरान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। अगर रात की तारीकी में मई और जून के महीना में लाइट कटती है तो कोई छत पर भाग रहा है, कोई अपने दरवाजे के बाहर द्वार पे जा रहा है, कोई मैदान में जा रहा है, कोई खेत में जा रहा है, ताकि खुदा की कुदरती हवा खुदा की कुदरती हवा हमारे बदन में लग जाए और हमारे बदन में ठंडक महसूस हो जाए। करते हो कि नहीं करते हो भैया? हाथ उठा करके बता दो कितने लोग करते हो। सब लोग हाथ उठा कर, अगर जो लोग करते हैं और जो गर्मियों में सड़क हुए वो ना उठावे हाथ। मेरे दोस्तों, और मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये शर्मा रहे हैं, कहीं ज़हूर भैया भी नमाज पर न फंसाई दिया। नमाज एक ऐसी चीज है, कहने वाले ने कहा था कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है, क्यों कर गुरूर आता है, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। कतार के मुसलमानों, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मुसलमानों, आओ तारीख कुर्बान जाओ। अब ये नौजवान पहुंचा है, मुसलमानों, ये जरूर जो मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, ये आप परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? हर लोग परेशान है, कोई अपने कपड़े को, कोई अपने कपड़े को, अपने लिबास को उतार रहा है, कोई पूजा पंखा चल रहा है, सारे लोग हर तरीके से परेशान है। लेकिन मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ अल्लामा जमील साहब, यहाँ कारी जाकिर साहब आपकी हिमायती बन जाएंगे, आपका एक सरिया बन जाएगा कि ये फूल लगाएंगे और बिजली फौरन आ जाएगी। और कब्र में तुम किसको तलाश करोगे? कब्र में कहां से लाइट लाओगे? कब्र में तुम किसको तलाश करोगे? वो भयानक काली कोठरी होगी, ना तेरा बाप वहां होगा, ना तेरी माँ वहां होगे, ना अहलो अयाल वहां होंगे, ना अल्लामा जमील कादरी साहब होंगे, ना कारी जो है जाकिर साहब होंगे, ना कारी रफीक साहब होंगे, ना कारी साबिर साहब होंगे। अब तू वहां किसको बचाएगा? अब वहां कोई बचाने वाला नहीं है, अब तू तुझे वहां वही बचाएगा। मुसलमानों, एक जुमला में कहना ये चाह रहा हूं, हर लोग अपने हर लोगों की वालिदैन अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है, अपने
अपने बेटे से बेपनाह प्यार करती है, हर वालिदैन अपने लालों से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन मुसलमानों कुर्बान चाहिएगा, एक जुमला मैं आपको देना चाहता हूँ, माँ की ममता यहीं तक रह जाएगी। मुसलमानों, जहाँ पर माँ की ममता दम तोड़ती है वहाँ से रसूलुल्लाह का रिश्ता शुरू होता है, जहाँ की बाप की हमदर्दी दम तोड़ती है वहाँ से रसूल पाक की हमदर्दी शुरू होती है। अब कब्र में तुझे कोई नहीं बचाने वाला है, तू वहीं पे हाथ मारता रह जाएगा, हाय काश मैं भी इबादत किया होता, हाय काश मौलाना ज़हूर के बातों पर हमने भी अमल किया होता। तो आज मेरे सामने मुनकर नकीर का भयानक चेहरा नहीं बल्कि गुंबदे खसरा वाले आका का नूरानी रोजा होता, आमीना के लाल का चेहरा होता, और मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह हमारे गुनाह को माफ फरमा देता। लेकिन आज मुसलमान, अल्लाह कुरान में ऐलान फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने अगर तुझे पैदा किया है तो किसी के बाप के लिए हाथ उठाने के लिए नहीं, अल्लाह ने तुझे पैदा किया है किसी की जिंदाबादी करने के लिए नहीं, अल्लाह ने तुझे पैदा किया है किसी की चमचागिरी करने के लिए नहीं। अगर अल्लाह ने तुझे पैदा किया है अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादतों रियासत करने के लिए पैदा किया है, अब तू वहां किसको बचाएगा? अल्लाह पर हमने तारीखों में पढ़ा है, अल्लामा जबील साहब से भी जो है पूछ लीजिएगा, हमने तारीखों में मुताला किया है, तारीखों के झरोकों से हमने झांक करके देखा है कि एक वक्त की जो जानबूझ करके नमाज तर्क करता है, नमाज छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसे 70,000 साल जहन्नम की आग में जलाएगा। अब बताओ मुसलमानों, जहन्नम की आग में जलोगे या जन्नती होना चाहते हो? कितने लोग जहन्नम में जलेंगे और कितने लोग जन्नत में जाएंगे? जरा हाथ उठा करके बता दे। कितने लोग जन्नती होना चाहते हो? हाथ उठा करके बताओ। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हो? अब भैया जो जहन्नम में जाए, हमारा जहन्नमियों से तो कोई वास्ता नहीं है, हमारा जहन्नमियों से तो कोई रिश्ता नहीं है। मुसलमानों, यहाँ से पैगाम लेकर के जाना, आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद हम नमाज तर्क नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह मैं अभी वहीं पर आऊंगा। अब ये नौजवान चोर बाजार से एक मोबाइल लेकर के पहुंचा है, पहुंचने के बाद बात हमारी यही छूट गई थी। पहुंचने के बाद नौजवान जो कतार के मोहल्ले में रात के 12 बज चुके हैं, हर लोग सो चुके हैं, अहले मोहल्ला सो चुका है, उसका बाप सो रहा है, उसकी बहन सो रही है, उसकी माँ सो चुकी है। अब ये नौजवान करे तो क्या करे? पूरी रात पूरे मोहल्ले में गली कूचे में ये बड़ी मोबाइल निकाल करके भोजपुरी गाना बजा रहा है। मोहल्ला वाले जान जाते हैं कि फलाने का लड़का आ गया है, वो नाजिल हो चुका है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अहले मोहल्ला सो चुका है, रात के 12 बज चुके हैं। अब ये पूरे मोहल्ले में गाना बजा करके नाच रहा है, घूम रहा है। एक चीज याद रखना, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। अब पूरे मोहल्ले में घूम रहा है और भोजपुरी गाने सुन रहा है। अहले मोहल्ला को पता चल गया है कि फलाने का लड़का तशरीफ ला चुका है। अल्लाह अकबर। रात की तारीकी है, जब अपने मकान में पहुंचता है, पहुंचने के बाद जो है पहुंचने के बाद एक लिहाफ लेता है और लिहाफ लेने के बाद अपने चेहरे को ढक लेता है। ढकने के बाद उसके बाद कुछ देर के बाद चेहरा को खोलता है, लिहाफ को हटाता है चेहरा से कि देखो मेरा बाप सो चुका है या जाग रहा है, देखो हमारी माँ सो चुकी है या जाग रही है, देखो मेरी बहन सो चुकी है या जाग रही है, देखो मेरा भाई सो चुका है या जाग रहा है। जब वो मुतमईन हो जाता है कि मेरा बाप सो चुका है, जब उसके दिल को करार मिल जाता है मेरी माँ सो चुकी है, मेरी बहन सो चुकी है, भाई सो चुके हैं, जब उसको यकीन हो जाता है कि मेरा बाप सो चुका है, अब लिहाज के अंदर वो नौजवान जो गूगल की दुनिया में जाता है और गूगल पे बोलता है फलाह जो है पिक्चर हमें चाहिए। यहाँ तक कि नंगी नंगी फिल्में हमारा नौजवान साथी देख रहा है, हमारा नौजवान भाई देख रहा है, लिहाज के अंदर डाल करके देखा जा रहा है और जिना का इरादा कर रहा है, लिहाज के अंदर डाल करके देख रहा है और ये सोच रहा कि मेरा बाप थोड़े ना हमें देख रहा है, मेरी माँ तो सो चुकी है, मेरा
भाई तो सो चुका है, मेरी बहन तो सो चुकी है, मेरा बाप तो सो चुका है। एक कतार का नौजवान, तेरा बाप तुझे नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा खुदाए पाक तुझे देख रहा है। मदीने का मुस्तफा तुझे देख रहा है, आमीना का लाल तुझे देख रहा है। ए मुसलमानों, गुनाहों से दूर हो जाओ, बुराइयों से दूर हो जाओ। आओ, अब्दुल कादिर की बात चली है। आज मुसलमान यही कहता है, अब्दुल कादिर का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोलते हो कि नहीं बोलते हो भैया? झूठ मत बोलिएगा। गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। सब लोगों से पाक को मानते हैं भैया, हम उनको मानते तो हैं, लेकिन अब्दुल कादिर की नहीं मानते हैं। अब्दुल कादिर ने कहा कि नमाज पढ़ो तो मुसलमान नहीं पढ़ रहा है। गौसे पाक ने कहा रोजा रखो, मुसलमान सरे बाजार खाना खा रहा है। अब्दुल कादिर ने कहा है कि नमाज पढ़ो जन्नत के हकदार हो जाओ। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, देवा शरीफ कभी आप गए हो कि नहीं गए हो? वारिस पाक के वहां बारगाह में आप गए हो ना? वहां पर एक जो है तख्ती लगी है और उस तख्ती पर लिखा गया है बाकायदा अब वारिस पाक की जानिब से कि जो नमाज नहीं पढ़ता है वो हमारा मुरीद नहीं है, वो हमारा मुरीद, हमारा उससे कोई वास्ता कोई रिश्ता नहीं है। अब बताओ मुसलमानों, तुम्हारा पीर कौन हो सकता है? अगर तुम पीर ही कर लो, नमाज ना पढ़ो, तो तुम्हारा पीर कौन हो सकता है? अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अब्दुल कादिर की बात चली है तो आओ मैं आपको बताता चलो बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि वक्त दामनगीर है। मैं 10 से 15 मिनट में आपके हवाले रहूंगा। ऐसे इंशाअल्लाह मैं बोलता रहूं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जाना भी है, वक्त दामनगीर है। आपको सुबह काम भी करना है, कोई धान की फसल काटेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल जमी के साथ बैठो। जलसा करा लेना ये कामयाबी की जमानत नहीं है, बल्कि जलसे को सुनना, उस पर अमल करना, अल्लामा जमील साहब की बातों को बताई हुई बातों पर अमल कर लेना, ये कामयाबी की बात है मुसलमानों। वरना जलसा तो लाखों लाख रुपया उड़ा देते हो और हमें कुछ मिलता उलता नहीं है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, सरकार अब्दुल कादिर की बात चली है, वो अब्दुल कादिर है। अल्लाह अकबर। अभी अल्लामा जमील साहब ने कहा, बताना यही चाह रहे थे कि जो है बताना यही चाह रहे थे कि एक डीएम की ताकत, एक डीएम की पावर जो है एक जिले तक महदूद होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर की बात यह है, जो पीरों का पीर है, रोशन जमीर है, कुतबे रब्बानी है, गौसे समदानी है, पीरे लासानी है। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर की शान तो देखो मुसलमानों, अब्दुल कादिर का मकाम तो देखो मुसलमानों। ये ना समझ लेना कि हम यहाँ बैठे हैं, मेरा गौस हमें नहीं देख रहा है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ अब्दुल कादिर यहाँ भी मौजूद है, हम उन्हें नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरा पीर हमें देख रहा है, मेरा गौस हमें मुशाहिदा कर रहा है, अब्दुल कादिर हमें देख रहा है। आओ कुर्बान जाओ मुसलमानों। और जिनको हमारी तकरीरें सुननी है, यूट्यूब पे बेशुमार हमारी तकरीर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे गौस का मकाम देखो, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये अब्दुल कादिर की जात है, ये अब्दुल कादिर की शान है। आओ कुर्बान जाओ मुसलमानों। एक दिन की बात है, सरकार गौसे आजम है। अल्लाह अकबर। ये न समझ लेना कि अब्दुल कादिर बाद में अल्लाह ने उनको वलायत के मकाम पर फाइज किया है, ऐसा नहीं है मुसलमानों, बल्कि अब्दुल कादिर अपने माँ उम्मुल खैर फातिमा के शिकम में थे, अल्लाह ने उन्हें वलियों का बादशाह बना दिया था, अल्लाह ने औलिया बना दिया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें औलियों को सुल्तान बना दिया था। ऐसा नहीं मुसलमानों, बल्कि अल्लाह सरकार अब्दुल कादिर जिलानी जो है पैदाइशी वली है, अल्हम्दुलिल्लाह। और तारीख अब्दुल कादिर समाप्त करते चलिए। सरकार अब्दुल कादिर की शान तो देखो, उनका मकाम तो देखो। अल्लाह अकबर। एक दिन की बात है मुसलमानों, अब्दुल कादिर से मोहब्बत करने वालों, हमारी तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी को मैं सोने नहीं देता हूँ, और जब कोई सोने लगता है ना तो मैं शेर की तरह दहाड़ने लगता हूँ, उसको पता चल जाता है कि भैया बेदार हो जाओ वरना बेकार हो जाएंगे। मुसलमानों, अब्दुल कादिर से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम से प्यार करने वालों, कोई कलदेसी मुर्गा खाएगा, कोई फार्मी खाएगा, कोई बकरा खाएगा, अब्दुल कादिर का सदका है, खाना चाहिए, हर लोगों को खाना चाहिए। लेकिन ये मत समझ लेना कि हम बड़कवा जो है बड़कवा मुर्गा लाएंगे और सभा करके अपने आप को ठूस लेंगे और हमारा पड़ोसी भूखा पड़ा रहेगा, ऐसा ना करना मुसलमानों, बल्कि अपने पड़ोसियों में जाकर के देख लेना कि कौन मेरे किसी मेरे भाई के मकान में
चूल्हा जला है कि नहीं जला है, मेरी बहन बेटियों के मकान में चूल्हा जला है कि नहीं जला है। अगर तेरा पड़ोसी गरीब है तो उसको भी तू अता कर दिया कर। कसम खुदा की अगर तू गौसे पाक का सदका उसे देगा तो अल्लाह ताला तुझे गौसे आजम का सदका अता कर देगा। तू यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी कामयाब रहेगा। लेकिन आज हमारा मुअम्मा है, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि मुसलमान अपने मकान में बिरयानी पका के खा के सो जाता है, पड़ोसियों का हक अदा नहीं करता है। मुसलमानों, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में कसा है, कसर है, माफी है, और हुकूकुल इबाद में न कसा है, न कसर है, न माफी है। जो अल्लाह का हक है उसमें कसा है, कसर है, माफी है, लेकिन हुकूकुल इबाद जो बंदों का हक है उसमें न कसा है, न कसर है, न माफी है। जब तक बंदा बंदे को नहीं माफ करेगा तेरा अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, अपने पड़ोसियों का ख्याल कर लेना। वाकयात आप बारहा समाप्त करते रहे हो। मुसलमानों, हमने देखा है, कोई आप परेशान तो नहीं हो रहे हो ना मेरे भाई? और बोलो 10-15 मिनट के बंद किया जाए मेरे भाई। तो कितने लोग सहमत हो? हाथ उठा करके बता दो। अभी तो मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ मेरे भाई। अल्लाह अकबर, कुर्बान चाहिए। अब्दुल कादिर की शान देखो, अब्दुल कादिर का मकाम देखो। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों जो है, अल्लाह अकबर, कुर्बान चाहिएगा मुसलमानों। आज हमारा मुस्लिम भाई है, एक चादर खरीदता हुजूर वाला और दरगाह गाजी पाक की बारगाह में पहुंचता है, बहराइच शरीफ पहुंचता है। पहुंचने के बाद 11,000 की चादर लेता है और लेने के बाद यहाँ कटार में मिसाल दे रहा हो, कटार से एक बकरा लेता है जो 15,000 का बकरा है, गाजी पाक की बारगाह में लेकर के जा रहा है। पीडीसी को बुला लिया जाए, प्रधान भैया को भूलना नहीं, उनको पहले बुलाया जाएगा। फलाना नेता को पहले बुला लिया जाए, वरना कहीं हमारा प्रधान हमसे नाराज ना हो जाए, हमारा पीडीसी हमसे कहीं नाराज ना हो जाए। अल्लाह अकबर, इमाम साहब छूटे हुए बैठे हैं, क्योंकि इमाम खुशी में नहीं बल्कि इमाम को तब याद किया जाएगा जब हमारे घर में कुरान खानी का इंतजाम ना होगा, तब इमाम को याद किया जाएगा। ये तेरा इमाम है, दुनिया का गुलाम नहीं, मोहब्बत का गुलाम है। ये किसी के बाप का गुलाम नहीं, रसूल पाक का गुलाम है। अल्लाह अल्लाह जो है बकरा लेकर के पहुंच रहा है, बहराइच शरीफ जो है बकरा लेकर के पहुंच रहा है सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में। अब इमाम साहब को भूल करके बैठा है, लेकिन जैसे हमारे मकान में किसी का इंतकाल होता है, भैया मौलाना साहब का जाओ देखो है कि नहीं है, पहले मौलाना को बुलाया जाए। अल्लाह अकबर, अब यहाँ मैं जुमला देना चाहूंगा। अब ये मौलाना का काम नहीं है कि तेरा बाप का जनाजा मौलाना पढ़ाए, ये मौलाना का काम नहीं है कि तेरी फातिहा मौलाना करे, ये मौलाना का काम नहीं है कि तेरी कुरान खानी मौलाना करे। अगर इन्हों ये आलिम दीन बने हैं तो इनके बाप ने मिट्टी काट करके इन्हें आलिम बनाया है। अपने बेटा को तू भी पढ़ा ले, कसम खुदा की, अगर तेरा बेटा आलिम दीन होगा तो दुनिया का गुलाम नहीं, फातिमा के लाल का गुलाम होगा, आमीना के लाल का गुलाम होगा। कुरान चाहिए मुसलमानों। इमाम साहब को भूल करके बैठा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग कारी जाकिर साहब से बड़ी मोहब्बत करते हो, मुझे पता है कि इनके इशारे पे गांव चलता है, चलना भी चाहिए, क्योंकि ये कारी साहब है, आपके गांव के इमाम है, मुदर्रिस से इनकी ताज़ीम करो, इनसे मोहब्बत करो। आका फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस से मुसलमान हो। जो उन नबी को नहीं देखे हो ना, मेरे आका अपने आका को नहीं ना देखे हो, उलमा को देख लो, मुस्तफा को देख लो, मुसलमान हो। अल्लाह अकबर जो है अब भूला बैठा है, प्रधान जी को स्कॉर्पियो में लेकर के जा रहा है, पीडीसी को स्कॉर्पियो में लेकर के जा रहा है, फलाने नेता को स्कॉर्पियो में लेकर के जा रहा है। इमाम साहब बेचारे मकान में बैठे हुए हैं। अरे छोड़ा जाए, जब कुरान खानी का मौका होगा तो हजरत को बुला लिया जाएगा, तीजा 400 में बुलाया जाएगा। हजरत को काहे को टेंशन ले रहे हो, क्योंकि हजरत ही जन्नत दिलाएंगे। ये प्रधान तुझे जन्नत नहीं दिला सकता है, ये प्रधान तेरे बाप को जन्नत नहीं दिला सकता है, ये बीडीसी तेरे बाप को जन्नत नहीं दिला सकता है। अगर तुझे कोई जन्नत दिला सकता है तो मुस्तफा की मोहब्बत जन्नत दिला सकती है, आमीना के लाल का इश्क जन्नत दिला सकता है, तुझे कोई जन्नत दिला नहीं सकता है। इमाम साहब को आप भूले बैठे हो मुसलमानों, पहले इमाम साहब को आगे किया जाए, अगली सीट पे हजरत को बैठाया जाए और बैठाने के बाद फिर लोगों को बुलाया जाए।
क्योंकि इमाम तेरा हाकिम है ना मुसलमान, इमाम तेरा कायद है ना मुसलमान, इमाम तेरा बादशाह है ना मुसलमान, इमाम तेरा रहनुमा है ना मुसलमान। तो इमामों की पहले कदर किया करो मुसलमानों। अल्लाह अकबर, कुर्बान चाहिए। अब वहां बकरा लेकर के पहुंचा है। पहुंचने के बाद 11 अब पूरे गांव में बता रहा है अल्लामा साहब, पूरे गांव में बता रहा है अल्लामा जमील साहब, देखो हम 15,000 का बकरा ले लिए हैं, गाजियाबाद की बारगाह में मैं लेकर के जा रहा हूं। अब पूरे गांव में ढोल बजा रहा है, पीट रहा है कि अब हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई दीनदार दाता कोई नहीं है। अब वहां लेकर के पहुंचा है, 11,000 की चादर खरीद रहा है। अब वो 11,000 चादर खरीदने के बाद गाजियाबाद की बारगाह में पेश कर रहा है। ये मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं चादर का मुनकर नहीं हूं माज़अल्लाह, न मैं 11,000 का मुनकर हूं माज़अल्लाह, न मैं तेरे बकरे का इनकार करता हूं, लेकिन मुझे कहीं ये बता दो कि 11,000 की चादर किसी 11,000 की चादर हदीस में लिखा है, 11,000 की चादर कुरान में लिखा है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी मुताला कर लो, आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये जरूर मिलेगा कि पड़ोसियों के हुकूक को अदा किया जाए, गरीबों यतीमों का ख्याल किया जाए। अब वो मुसलमान 11,000 की चादर लेकर के गाजियाबाद की बारगाह में पहुंचा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मेरा गाजी तेरे 11,000 चादर का मुहताज नहीं है, मेरा ख्वाजा तेरी 11,000 चादर का मुहताज नहीं है। मैं चादर का मुनकर नहीं मुसलमानों। अगर 11,000 चादर की जगह पर 1,100 रुपया का अगर तू चादर पेश कर देता और 4,000 रुपया बचा करके बहराइच की सरजमी पर रुपट्टा गरीब बच्चियों के लिए खरीद लेता, तो कसम खुदा की तेरा गाजी तुझसे राजी हो जाता, मदीने का मुस्तफा तुझसे राजी हो जाता, तेरा खुदा तुझसे राजी हो जाता। तो ये मुसलमानों, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम गरीबों को देंगे ना मेरे भाइयों। अगर किसी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसका निकाह करा दिया करो। किसी के यहाँ खाने का सामान नहीं है, उसको खाना मुहैया करा दिया करो। यही तो तरीके मुस्तफा है यार। कहने वाले ने कहा था कि रहते फाके में फकीरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक दिन आका हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है वज़ू फरमा रहे हैं। एक दिन एक गुलाम सरकार अब्दुल कादिर की बारगाह में जल्दी जल्दी में खत्म कर रहा हो। अब्दुल कादिर की बारगाह में एक गुलाम, एक गुनहगार इंसान पहुंचता है और पहुंचने के बाद हाथ जोड़ करके अर्ज करता, हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, बहुत बड़ा सियाकार हूँ, बहुत बड़ा खताकार हूँ। हुजूर हम चाहते हैं कि आपकी खिदमत में गुनहगार को आपके सलन में मुझे जगह मिल जाए, आपकी खिदमत करने को मुझे मौका मैसर हो जाए। गुलाम कह रहा, गुनहगार बंदा कह रहा है। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में अब वो गुलामी कर रहा है। कसम खुदा की अब्दुल कादिर का गुलाम भी वली हुआ करता है। जो अब्दुल कादिर के शरण में पहुंच जाता वो भी वली हो जाया करता है। वो मेरे गौस की शान है, वो मेरे गौसे पाक का मकाम है मुसलमानों। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ए गुलाम कान खोल करके सुन ले, तेरा काम कुछ नहीं है। जब मैं नमाज के लिए जाया करूं तो मुझे पानी देते रहना, यही तेरा काम है। अल्लाह अकबर। रोजाना वो पानी देता रहा। मेरे आका अब्दुल कादिर जिलानी वजू फरमाते रहे। एक दिन की बात है, नमाज असर का वक्त हो जाता है। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरादे वजू करते हैं, वजू के लिए बैठते हैं। जैसे गुलाम पहुंचता है, आका गौसे पाक की बारगाह में एक लोटा पानी पेश करता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पानी से वजू कर रहे हैं। एक लोटे का पानी खत्म हो जाता है, दूसरा लोटा आता है वो भी खत्म हो जाता है, तीसरा लोटा आता है वो भी खत्म हो जाता है। यानी ये 2 3 4 5 रहे, बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 17 लोटों के पानी से आपने वजू फरमाया है। जब नमाज से फरागत हासिल होती है, मेरे आका बड़े पीर रोशन ज़मीन जब नमाज से फारिग होते हैं, हुजरे मुबारका में गुलाम पहुंचता है, हाथ जोड़ करके अर्ज करता है, हजरात तवज्जो का तलबगार हो, हुजूर रोजाना आप 1 लोटे के पानी से वजू किया करते थे, आज आपने 17 लोटों के पानी से वजू क्यों फरमाया है? इस राज को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं,
इस राज को ना जान तो बेहतर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हो तो ऐसा हो, क्योंकि गुलाम का अकीदा था जो अब्दुल कादिर कह देंगे हो करके रहेगा, जो और कहेगा हो करके रहेगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान चाहिए मुसलमानों। अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में अर्ज करता है, हुजूर हम इस राज को जानना चाहते हैं। सरकार हो से पाक फरमाते हैं, ए गुलाम सुन ले, अगर तू इस राज को जानना चाहता तो कान खोल करके सुन ले। एक लोटे जो 17 लोटे के पानी से हमने वजू किया है, हकीकत तो यह है एक लोटे के पानी से अब्दुल कादिर ने वजू किया है और 16 लोटों के पानी से अब्दुल कादिर ने जहन्नम की आग को बुझाया है। देखा है, मैं क्या देखा जब वजू कर रहा था, वजू करते करते हमारी नजर अचानक लौहे महफूज पर पहुंचे। हमने देखा तेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा है, तेरा नाम जहन्नम के दरवाजे से काट करके जन्नत के दरवाजे पर लिख दिया है। और 16 लोटों के पानी से हमने वजू को जो है जहन्नम की आग को बुझाया है। तो पता ये चला बगदाद के राजा का ये आलम हो तो मदीने के महाराजा का आलम क्या होगा। शाहाने जमाना की झोले मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, कारी ज़हूर आलम साहब किबला, नारे तकबीर। बस मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, 2 मिनट की गुफ्तगू हमारी और है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव का मदरसा भी अच्छा बना है, लेकिन अभी तक छत नहीं पड़ी है ना।